Hello everyone, welcome to Unacademy. Welcome to Unacademy semester exam. Unacademy, let's crack it. Crack Get NESC with India largest learning platform. Get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India-based educators. So myself Akash Jaiswal, I have completed my MTech in manufacturing engineering, 4 times GATE qualified, 3+ year of GATE teaching experience, and also mentor 10,000 plus aspirants for GATE. My area of expertise: manufacturing engineering, industrial engineering, strength of material, machine design, and also heat transfer. So install Unacademy Learning app from Play Store, and what you will get in Unacademy platform: daily live classes are provided, structure courses, live tests and quizzes, and unlimited access. In Iconic subscription, take your GATE and ESC preparation to next level with personal coach. So in Iconic subscription, personal coach are provided, study tracker, men's question and answer practice, and all benefits of Plus. And in Plus subscription, your access to the best of Unacademy. So daily live classes are provided, structure courses, live test and quizzes, and unlimited access. And connect India topmost Unacademy educators. For GATE and EAC aspirants, batches and year-long courses: ECE, General Aptitude, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, CSNIT, Instrumentational, Mathematics, Electrical, Civil, Production and Industrial Engineering. So all branches are covered in Unacademy platform. So new update: Evolve for GATE 2022 Mechanical Engineering students. So these batches start on 22nd Feb 2021. So for this course, use my code AKAS10. Use my code AKAS10 to get 10% instant discount for Evolve GATE 2022. Okay. And next, Ascent for GATE 2023. This batch is very helpful for third year and fourth year students. This batch is very helpful for third year and fourth year students, and it will start 22nd 2021 for mechanical engineering students. Okay, so for this course, use my code AKS10 to get 10% instant discount. Okay, so here the benefits of Plus: India-based educators are provided interactive live classes, structure courses and PDFs, and live tests and quizzes. And also in Iconic subscription. So in Iconic subscription, Plus benefits are provided: Plus Extra, personal coach, personalized test analysis, study planner, and preparatory study materials. So these things are extra provided in Iconic subscription. That's why Iconic subscription is very important for every GATE and ESC aspirants. For Plus plan, minimum 12 months, 30,250, and after using my code AKAS10 to get 10% instant discount, and it will get 27,225, and 18 months 38,500, and after using my code it will get 34,650, and 24 months 44,000, and after using my code it will get 39,600. So use my code AKS10 to get 10% instant discount for Plus plan. And in Iconic plan, minimum 12 months 50,250, and after using my code AKS10 to get 10% instant discount, and it will get 45,225, and 24 months 74,000, and after using my code it will get 66,600. So use my code AKS10 to get 10% instant discount for Iconic plan, or this plan is very important for GATE and ESC aspirants. So let's crack GATE and ESC. Subscribe Unacademy semester exam channel and use my code AKS10 to get 10% instant discount for both Plus plan and Iconic plan. So today we will discuss, should GATE aspirants go for ESC or not. Okay, क्लियर है? तो शुड गेट एस्पेरेंट्स गो फॉर ईएससी और नॉट? तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना होगा कि क्या गेट एस्पेरेंट्स ईएससी में जा सकते हैं, गेट के जो एस्पेरेंट्स है वो ईएससी फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्या होती है स्ट्रेटेजी
तो उस स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप स्क्रीन में देख सकते हो गेट एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, पैटर्न, पेपर पैटर्न फॉर गेट 2022। ओके, फॉर गेट 2022। सो एग्जाम ड्यूरेशन आपको पता है 3 आवर्स 180 मिनट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 27, ओके, number of questions 65, number of questions of maximum 100 marks, okay, general aptitude 10 question and engineering maths plus core subject 55 question, क्लियर है। सो 10 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 55 क्वेश्चन मैथ्स और कोर सब्जेक्ट्स के होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है गेट, ये आपको पता है। सो टोटल मार्क्स, इंजीनियरिंग मैथ्स का वेटेज 13 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स एंड कोर सब्जेक्ट 72 मार्क्स, ओके। सो देयर विल बी 3 क्वेश्चंस टाइप। 3 क्वेश्चंस टाइप्स मींस, जो क्वेश्चंस टाइप्स होते हैं, क्या होता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एमएसक्यू जो गेट 2021 में ऐड किया गया था, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे से। तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जबकि मैकेनिकल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सेट 1 और सेट 2 दोनों में नहीं आया एमएसक्यू, बट इन केस अगर गेट 2022 में आ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए भी अपन को प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनएटी टाइप होते हैं गेट में। तो टोटल पैटर्न क्या है, 3 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन मींस मोर देन वन क्वेश्चन आर करेक्ट, और एनएटी देयर इज नो ऑप्शन, ओके। तो टोटल पैटर्न जो होता है, क्वेश्चन के जो टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं गेट में, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी। नेक्स्ट, गेट 2022 क्वेश्चन पेपर विल कॉम्प्रोमाइज ऑफ 13, क्या है, टोटल 3 सेक्शन एक्सेप्ट फॉर एआर, सीवाई, जीजी, एक्सएल, पीएच एंड एमए पेपर, ओके। सो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फॉर एक्सेल पेपर इट इज केमिस्ट्री, ठीक है। तो अपन को अपने सिंपल इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात करनी है। सो इंजीनियरिंग साइंसेस एक्सी, इंजीनियरिंग साइंसेस प्लस मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, ओके, एंड इंस्ट्रूमेंटेशनल। तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन, जिस ब्रांच से आप हो तो उसके क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो जिस ब्रांच से हैं उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पर पैटर्न क्या है, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और टेक्निकल सब्जेक्ट्स, क्लियर है। एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और ब्रांचेस, ब्रांच के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल सेक्शन है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में 5 क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन देखोगे तो 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो टोटल कितना हो गया, 15 मार्क्स। सो जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज कितना है, 15 मार्क्स, ओके, 15 मार्क्स। नेक्स्ट, मार्किंग स्कीम जो होता है, एमसीक्यू कैरी 1 मार्क्स ईच, और -1/3 मींस 0.33 नेगेटिव मार्किंग होगा फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, एंड एमसीक्यू कैरी 2 मार्क्स। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसके क्या होंगे, 0.66 आपके रॉन्ग आंसर पे डिडक्ट होंगे, क्लियर है। सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, एमएसक्यू पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप पे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, क्या है, एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन एंड एनईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, ओके, नो नेगेटिव मार्किंग, क्लियर है, ओके। तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, एवरी रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स पे 0.33 डिडक्शन और 2 मार्क्स पे 0.66 डिडक्शन होता है, क्लियर है। ये पैटर्न गेट का एक बार आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये पैटर्न है, ठीक है। सो अगर बात करें हम लोग ईएससी, आईएएस एग्जामिनेशन, तो आईएएस एग्जाम में क्या होता है, हम लोग को क्या करना है, कंपेयर बेस्ट कौन सा होगा, और क्या हम गेट के थ्रू, गेट की तैयारी करेंगे तो क्या ईएससी फर्दर अप्लाई करें या नहीं, या फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा हमारे लिए। तो इसके लिए एक एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीलिम्स की पहले बात करते हैं, प्री। तो प्री जो होता है, मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होता है, गेट का ऑनलाइन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पेपर्स 2 होंगे प्रीलिम्स में, पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। तो पेपर 1 में ओनली जनरल स्टडीज होते हैं और एप्टीट्यूड के सेक्शन होते हैं। सेकंड पेपर स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू फील्ड,
आपके ब्रांच से रिलेटेड सेकेंड पेपर होता है। क्लियर है? फुल्ली ये क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू। ओके, फुल्ली ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 500। ओके, नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1/3 ऑफ द असाइंड मार्क विल बी डिडक्टेड। क्लियर है? तो आप 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर है पॉइंट्स? सो पेपर 1 और पेपर 2 इंपॉर्टेंट यहाँ प्री क्वालिफाई करना है। तो प्री क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको? जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड और सेकेंड टेक्निकल सब्जेक्ट। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टोटल मार्क्स 500 होता है। प्रीलिम्स अगर बात करें यहाँ डिटेल में तो सिविल इंजीनियरिंग हो, ठीक है, और मैकेनिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 1 होता है 2 आवर्स। क्लियर है? पेपर 1 होता है 2 आवर्स, 200 मार्क्स। क्लियर है? और पेपर 2 होता है 3 आवर्स, 300 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 500 मार्क्स। तो प्रीलिम्स जो होता है 500 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो सिमिलर होता है ऑल ब्रांचेस का जो पैटर्न होता है, सेम टू सेम होता है। पेपर 1 200, पेपर 2 300 मार्क्स। ओके, तो सभी ब्रांचेस के यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं अप्लाई ईएसी। सो मेन जो मेंस एग्जाम होता है, क्लियर है? सो मेंस एग्जाम होंगे, वो क्या होता है? प्री को क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस का एग्जाम दोगे। तो ये भी क्या है? मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन। तो नंबर ऑफ पेपर 2, बोथ पेपर फील्ड स्पेसिफिक। ओके, तो नंबर ऑफ पेपर क्या है? 2। टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल टाइप होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 300 और ईच ड्यूरेशन 3 आवर्स ईच पेपर। तो टोटल कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर। ओके, कितने पेपर होते हैं? 2। सो फर्स्ट पेपर 300 और सेकंड पेपर 300। सो टोटल कितना हो गया? 600 मार्क्स। ओके, और मीडियम ऑफ पेपर क्या होता है? इंग्लिश ओनली। ओके, क्लियर है पॉइंट्स? तो यहां पर जो आप पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 1 300 और पेपर 2 भी 300, और ये कन्वेंशनल होता है। और टेक्निकल से ही कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल क्वेश्चन जो होते हैं टेक्निकल से ओनली प्रोसीजर फॉलो करना है और सॉल्व करना होता है। क्लियर है पॉइंट्स? तो सभी ब्रांचेस का पैटर्न सेम होता है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। एंड ना लास्ट राउंड जो होता है वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसका मार्क्स होता है 200, लाइक इंटरव्यू टाइप। ओके, पर्सनालिटी टेस्ट। सो अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंटों को डाउट होता है इस पोर्शन पे, जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। तो जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में करंट इशू, ओके, करंट इश्यूज नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेटिंग, ओके, टू सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एटसेट्रा। क्लियर है? तो यहाँ जनरल स्टडीज सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें गेट, ओके, क्लियर है पॉइंट्स? अगर कंपेयर करते हैं अपन ओनली गेट और ईएसी, आईएएस, तो अगर कंपेयर करते हैं आप तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट और ईएसी में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड ईएसी? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। गेट में क्या होता है? जनरल एप्टीट्यूड होता है क्या? यस, जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग। तो मैं सबसे पहले ईएससी में प्री की बात करता हूं। पहले प्री की तैयारी करोगे, देन मेंस में आप बैठ सकते हो। ठीक है, तो प्री में अगर बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग, ये होता है प्री के लिए अगर हम तैयार करें तो। क्लियर है? और नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं मैथ्स, तो गेट में मैथ्स होता है, ओके, और ईएससी में भी मैथ्स होता है, बट ईएससी का मैथ्स गेट के लेवल से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ज्यादा आपको यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है ईएससी में, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। ठीक है, प्री में। नेक्स्ट अगर बात करें टेक्निकल,
टेक्निकल, तो यहाँ भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हुए और यहाँ पर भी आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करोगे, टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ओके, सो टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो आप अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में आप यहाँ पर ऐड क्या करोगे, एक्स्ट्रा। तो यहाँ एक्स्ट्रा आप बोलोगे प्लस जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज। क्लियर है पॉइंट्स। सो जनरल स्टडीज आपको ओनली प्रिपेयर करना है। और सिंपल आप बोल सकते हैं गेट और ईएसी में डिफरेंस जो होगा, तो डिफरेंस में टेक्निकल सब्जेक्ट्स का होता है। ओके, गेट में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ओके, और जो ईएसी होता है, ईएसी में थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, बट न्यूमेरिकल गेट लेवल का नहीं होता है। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईएसी में, क्लियर है। बट गेट में टेक्निकल सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और 5 to 6 मार्क्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, 5 to 6 मार्क्स के। मैक्सिमम अगर आप देख लो तो 10 मार्क्स, क्लियर है। सो 10 मार्क्स के आप टेक्निकल सब्जेक्ट में थ्योरी देख सकते हो। तो थ्योरी यहां भी होता है, बट गेट में थ्योरी का वेटेज कम है और ईएसी में थ्योरी का वेटेज ज्यादा होता है, क्लियर है। सो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि सर जो गेट एग्जाम है, गेट एग्जाम में प्रिपेयर करना है तो न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट ईएसी एग्जाम में सिर्फ आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है जनरल स्टडीज, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं तो कुछ टॉपिक्स हैं जो डिफरेंट है टेक्निकल में, लाइक पावर प्लांट में कंप्रेसर डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं गेट के लिए, बट ईएसी में कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, लाइक बॉयलर, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं, उसको आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे ईएससी के लिए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट्स। सो गेट और ईएससी में अगर आप बात करते हैं, गेट, तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ईएससी में जा सकते हो, जाना सही होगा या नहीं। तो आप बोल सकते हैं सर गेट और ईएससी में डिफरेंस कहाँ है। बात समझ में आ रहा है, गेट और ईएससी में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो ऑटोमेटिक आपकी ईएस की तैयारी होगी, अगर आप ईएस की तैयारी कर रहे हो तो गेट की तैयारी होगी, तो सिलेबस टेक्निकल सब्जेक्ट्स में क्या है, सेम है। क्लियर है पॉइंट्स। गेट और ईएससी में सिलेबस क्या है, सेम। तो आपको इतना पॉइंट्स ध्यान देना है कि गेट की तैयारी करो या फिर ईएससी की, टेक्निकल, टेक्निकल सब्जेक्ट्स क्या होंगे, सेम। ओनली गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं और ईएससी में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट तो दोनों में इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ईएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल में, क्लियर है। और प्लस यहाँ पर जनरल स्टडी। सो गेट एस्पिरेंट सीएससी की तैयारी इजिली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना याद रखना है, गेट एस्पिरेंट्स इजिली जा सकते हैं एसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली जनरल स्टडी को पर डे 1 आवर दे दो, पर डे 1 आवर आपको पढ़ना है और करंट इशू पे आपको कनेक्ट रहना है, करंट इशू। ओके, क्लियर है पॉइंट्स। और बेसिक नॉलेज होना चाहिए ऑल ब्रांचेस का, ठीक है। सपोज अगर कोई एमई स्टूडेंट्स है तो एमई स्टूडेंट्स को सिविल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, लाइक सॉइल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, क्लियर है। वैसे ही सिमिलरली ईएससी के लिए अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिविल के स्टूडेंट्स, तो सिविल के स्टूडेंट्स को मैकेनिकल के कुछ पॉइंट्स लाइक क्लच, डिजाइन ऑफ क्लच, तो कुछ पोर्शन है जिसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये प्रिपरेशन जो है ये जनरल स्टडीज में आती है, नॉट इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ओके, सो इलेक्ट्रिकल ईसी सभी के लिए एक दूसरे के लिए क्या करना है, पढ़ना है। जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, सो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स में मैकेनिकल के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जनरल स्टडी में, सिविल के भी। तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग,
आप बोल सकते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज कॉल्ड जनरल स्टडी। ओके, पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में जनरल स्टडी का जो पोर्शन था वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस था। अब क्या हो गया है, पैटर्न चेंज हो चुका है। सो जनरल स्टडी का पोर्शन क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और कुछ करंट इश्यूज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो जनरल नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पर्टिकुलर आपको एक गाइडेंस मिलेगा, तो आप जनरल स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? ओके, तो गाइडेंस के लिए आपको क्या करना है, अन अकेडमी के साथ कनेक्ट रहना है, और अन अकेडमी के जो भी अपडेट देते हैं फैकल्टीज मेंबर, उसको आपको फॉलो करना है डे बाय डे। तो पर डे आपको क्या है, 1 आवर, क्या है, 1 आवर की स्टडी करनी है। ऑन दी जनरल स्टडी क्या करना है, 1 आवर स्टडी करो, और बाकी टेक्निकल पढ़ो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको गेट को अलग से तैयार करना है और ईएससी को अलग से तैयार करना है। बात समझ में आ रहा है? दोनों के लिए ऐसा नहीं है आपको टाइम अलग अलग देना है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स को आप ऐसा पढ़ो, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और आईएएस के लिए और अदर पीएसयू एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम। क्लियर है? सो टेक्निकल सब्जेक्ट्स को बेसिक से स्टार्ट करो, और बेस्ट मेथड से आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो टेक्निकल सब्जेक्ट्स। फिर आपके लिए गेट और एएससी और अदर पीएसयू एग्जाम्स, स्टेट लेवल एग्जाम्स, एसएससी, जेई, एआई, ठीक है, एआई, एएन, जेईएन, जितने भी एग्जाम्स हैं सभी आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? बोलो यहाँ पर, किसी को भी यहाँ पर कोई डाउट है? सो पेपर पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्री की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली यहाँ पर प्री की, जर्नल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ये सेक्शन आपको तैयार करना है। सो जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ओके, एप्टीट्यूड भी इजी होते हैं, जो गेट लेवल का है, सेम टू सेम इंजीनियरिंग सर्विसेज का है। और सेकंड, स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू फील्ड लाइक ब्रांच वाइज, तो ये इसके लिए आपको अलग से तैयार नहीं करना है, ये आपका गेट और ईएससी का सेम है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको क्लास में बता दिया जाएगा कि ये गेट के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स है और ये गेट में नहीं है। क्लियर है पॉइंट्स? ओके, तो उसके लिए आपको नोट कर लेना है नोट्स में। जैसे नोट्स अगर आप लिखते हो, तो अगर इन केस बॉयलर की बात करें, तो अगर बॉयलर आप पढ़ रहे हो तो ये गेट में नहीं है, बट अदर एग्जाम्स में है, लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में। तो गेट के लिए नहीं है तो आप उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि गेट में बॉयलर नहीं पूछा जाता है, बट अदर पीएसयू एग्जाम में आते हैं जहां पर आप अपेयर हो गए, तो उसके लिए भी तो तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बॉयलर पढ़ लो और वहां पर मेंशन कर दो, इट्स नॉट फॉर गेट। क्लियर है पॉइंट्स? ओके, तो पढ़ना आपको सभी है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो भी फैकल्टीज मेंबर आपको सजेस्ट करते हैं, बोला जाता है कि अन अकेडमी के फैकल्टीज मेंबर जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको ये गाइड करेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक किसके लिए कितना टाइम देना पड़ेगा और किसको कितना टाइम पे स्टडी करना है। ठीक है, फोकस करना है ओनली आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ओके, जो गेट के लिए भी हेल्पफुल होगा और इंजीनियरिंग सर्विसेज। और ओनली आपको मैं बोल रहा हूँ पर डे 1 आवर का शेड्यूल कर लो, पर डे 1 आवर जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, पर डे 1 आवर करोगे तो कुछ भी नहीं है, आराम से आप प्री निकाल सकते हो। क्लियर है? और जैसे ही आप प्री निकालते हो, मेंस एग्जाम का ओनली टेक्निकल है। बात समझ में आ रहा है? ओनली मेंस एग्जाम में टेक्निकल, तो आप तो टेक्निकल पढ़ चुके हो पहले भी। अब क्या करना है, कन्वेंशनल मेथड पूरा प्रोसीजर के साथ सॉल्व करना है सब्जेक्ट सेम, प्री में भी टेक्निकल का सब्जेक्ट और मेंस में भी। बस डिफरेंस क्या है, वहां प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और मेंस में क्या होगा, कन्वेंशनल, जैसे आप लोग कॉलेज में सॉल्व करते थे, याद होगा आप लोग को कॉलेज का, जहां 3 लाइन्स में आंसर देना है उसको आप 5 लाइन्स में देते हो। ठीक है, तो कॉलेज में है, तो बट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो रूल है, क्वेश्चन आपको पेपर में लिखा होगा, उसके लिए स्पेस, पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेस गिवन होगा, ध्यान से समझ लेना मेंस में। ठीक है, स्पेस गिवन होगा, उसी स्पेस में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन केस अगर आप उस क्वेश्चन को उस पेज में नहीं सॉल्व कर पाए, रॉन्ग करते हो, तो नेक्स्ट पेज पे अगेन, सेकेंड पेज पे आप नहीं जा सकते उस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
ये क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पेस दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन मिस्टेक कर गए तो दोबारा आप उसको बनाने के लिए दूसरे क्वेश्चन में नहीं जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 अगर मिस्टेक हो गया तो आप क्वेश्चन नंबर 2 वाले पेज में क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नहीं कर सकते, फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर है पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पेज में क्वेश्चन नंबर 2 को ही सॉल्व करना है। तो ये मेंस का रूल होता है, इसको काफी अच्छे से समझ लो बेसिक से। क्लियर है, ओके। तो इस कंडीशन में आप 2 पेपर्स होते हैं कन्वेंशनल, जिसमें स्पेसिफाई होगा कि फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट्स कौन से होंगे और सेकेंड पेपर में कौन से होते हैं। तो 300 एंड 300 मार्क्स। तो टोटल अगर आप बात करें मार्क्स, तो 500 प्री होगा और 500 आपका प्री होता है एंड 600 क्या होता है, मेंस। ओके, प्लस 200 आपका क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू। ओके, सो टोटल अगर आप यहां पर देखते हैं तो कितना होगा ये, टोटल अगर आप देखोगे तो 200 प्लस 600। ओके, 200 प्लस कर दो 600, 800 और 800 प्लस 500, 1300। सो टोटल 1300 मार्क्स के होते हैं। क्लियर है पॉइंट्स, ओके। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं सर गेट के स्टूडेंट्स भी आईएएस के एग्जाम्स में आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन होता है ओनली ओनली एंड ओनली जनरल स्टडी का सेक्शन है, जिसको अलग से आपको प्रिपेयर करना है। ओके, क्लियर है पॉइंट्स, बोलो। ओके, सो आपको होपफुली ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो आप एक बार प्रिपेयर करो और नेक्स्ट मेरे अपकमिंग वीडियो पे और भी रिलेटेड आपको मैं अपडेट देते रहूंगा। क्लियर है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।